Hello children, I hope you are doing well and welcome back the third part of the lesson number 3. Lesson number first part we have discussed about giant, how he was and how he was not allowing children to play in his garden. But somehow the second part of the lesson number 3 we have discussed that giant was so kind towards the children. So my dear children, today we are going to see the third part of the lesson number 3. Here we will continue these lessons, how the giant is so kind and he is inviting the children to play in his garden. He was so kind to a little boy to whom he took up and put into the tree. So we will discuss and we will try to complete this lesson in the third part of this video. So let's start. Please open your books, page number 22. It's so happen books. So here written, but where is your little companions? He said, the boy I put into the tree. So my dear children, जब बच्चे उस गार्डन के अंदर खेलने के लिए गए तो उन सभी बच्चों को सेल्फिश जायंट पूछने लगा कि वो बच्चे कहाँ हैं जिनको मैं उठा के पेड़ के ऊपर बैठाया था. ठीक है, उस बच्चे के बारे में यहाँ पे जायंट बात कर रहा है जो कि वो एक सपना देखा था और एक बच्चा जो है क्या था, वो पेड़ के नीचे वो पेड़ के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा था. ठीक है, the giant loved him the best because he had kissed him. जायंट उससे बहुत प्यार करता था क्योंकि उससे वो किस किया था. ठीक है, उससे वो बहुत प्यार करता था. And we don't know, answer the children, he has gone away. फिर बच्चे ने उससे जवाब दिया, आंसर दिया जायंट को कि हमें नहीं पता, शायद वो यहाँ से चले गया है. So you must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. But the children said that they did not know where he lived. फिर सेल्फिश जायंट उन सभी बच्चों को क्या बोल रहा है कि जब आप दोबारा घर जाओगे तो उस बच्चे को बोल देना कि आपको याद कर रहा था. ठीक है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि वो बच्चे रहता कहाँ पे, हमें तो कभी उसे देखा नहीं, ना कि हमें कभी उसे मिला. सो फिर लिखा है यहाँ पे, but the children said that they had not know where he lived and never seen him before, and giant felt very sad. फिर बच्चे ने जायंट को ये बोल दिया कि हमने कभी उसे देखा नहीं, कहाँ पे रहता है. तो जैसे ये बात बच्चे ने जो है जायंट को बोल दिया तो जायंट बिल्कुल जो है नाराज हो गए. Now every afternoon when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. ठीक है, हर दोपहर को सारे बच्चे जो है जायंट की एक खूबसूरत ब्यूटीफुल गार्डन में आके खेलते थे. ठीक है, लेकिन वो लिटिल बॉय जिनको जायंट बहुत प्यार करता था वो क्या है, कभी भी जायंट उसे देख नहीं पाया, ना कि वो छोटा सा बच्चा कभी गार्डन में आके खेलने की कोशिश की. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friends. यहाँ पे लिखा है कि आप जो है बिल्कुल जायंट जो है वो एक सेल्फिश नहीं रहा, लेकिन जायंट क्या हो गया था, एक काइंड टुवर्ड्स द चिल्ड्रन हो गया था. बच्चों को बहुत प्यार करने लगा, लेकिन बस अपने एक छोटा सा दोस्त को वो हमेशा मिस करता था. ओके, सो एंड ऑफन स्पोकिंग हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से. बच्चों से ये बोलता था, बच्चों के बारे में, वो छोटे से बच्चे के बारे में बात करता था और चिल्ड्रन से ये बोलता था कि कैसे मैं उसको देख पाऊंगा आने वाले समय में, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं उस बच्चे को फिर से वापस गार्डन में लेके आऊंगा. So years went by and the giant grew old and feeble. He could not play anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at the games and admired his garden. ठीक है, ऐसे ही साल गुजरते गया और जायंट जो है बिल्कुल बूढ़ा होने लगा, कमजोर होने लगा. ठीक है, और वो उसे देख नहीं पाया और वो एक आर्म चेयर में बैठ के जो है बच्चों की खेलते हुए देखता था, गेम्स वगैरह. ठीक है, और बच्चों को बहुत ही प्रशंसा करता था. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flower of all. Giant, what is saying in this sentence that my garden is so beautiful, but more than that, the children are beautiful than my gardens. So one winter morning, he looked out his window. He saw dressing. He did not have the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. अब एक सुबह की बात है जब वो अपनी बेड से उठता है तो उसको अपनी गार्डन को जब वो देखता है तो गार्डन में क्या था, विंटर आ चुका था, स्प्रिंग नहीं था, विंटर आ चुका था. लेकिन जायंट को इतना मालूम था
कि बिल्कुल जो है ये सुबह के वक्त है और शायद जब बच्चे आने लगेंगे तो अपने आप जो वो गार्डन में फूल खिलने लगेगा और अपने आप जो है वो गार्डन खूबसूरत दिखने लगा, उसको ये मालूम हो गया था। Suddenly he rubbed his eyes and wondered and looked at. It certainly was a marvelous sight. ठीक है, जैसे वो तुरंत क्या किया, अपनी आंखों को रगड़ते हुए, ठीक है, वो देखते गया। उसके बाद उसको एक अद्भुत दृश्य दिखाई दी। क्या था वो अद्भुत दृश्य? In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with the lovely white blossoms. उस गार्डन के एक किनारे पे एक पार्ट में क्या था, एक खिले हुए फूल्स वगैरह उनको दिखाई दी। Its branches were golden and the silver fruit hung down from them. और उसकी जो ब्रांचेस था वो क्या था, गोल्डन का था, ठीक है, और उसमें जो फ्रूट्स था वो सिल्वर था, ठीक है। एंड underneath it stood the little boy he had loved. और उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा लड़का जिनके लिए वो हमेशा बच्चों से भी पूछता था और बहुत उदास भी था, वो उसे दिखाई देता है। Downstairs ran the giant and great joy. और जैसे वो इस चीज को, इस अद्भुत दृश्य को देखता है तो अपने घर से नीचे उतर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे उस बच्चे छोटे से लड़के से मिलना था। And out in the gardens he hastened across the grass. ठीक है, जलबली में वो क्या करते हैं, घास को क्रॉस करते हुए उस पेड़ की ओर भागते हुए जाता है जिस पेड़ की ब्रांचेस गोल्डन था और उसकी फ्रूट सिल्वर का था। Then what happened? And they came near to a child, and when he came quite close, his face grew red with anger. जैसे वो नजदीकी पहुंचता है तो उसकी जो चेहरा है वो गुस्से में क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्यों? And he said, who had dared to wound this? For one of the palms of the child's hands were the printed of the two nails, and the prints of the two nails were on the little feet. Who had dared to wound thee? Cried the giant. Tell me that I may take my big sword and slay him. जैसे उस पेड़ के पास पहुंचता है तो उसको जो है वो उस बच्चे वो बच्चे को वो देख नहीं पाता है, ना कि गोल्डन की जो ब्रांचेस उसको दिखाई देता है, ना कि उसे सिल्वर जो फ्रूट्स उनको दिखाई देता है। कुछ और था, वो उसकी पेड़ की बनावट वैसा था, तो ये उनके लिए कंफ्यूजन होता है और वो गुस्से में जो है उसकी मुंह जो चेहरा जो है लाल हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 24. Nay, answered the child, but these are the wounds of love. Who are thou? Said the giant, and the strands as well as fall on him. He knelt before the little child, and the child smiled on the giant, and he said to him, you let me play once your garden. Today you shall come with me to my gardens, which is paradise. ठीक है, बच्चे जो है उनको एक तरह से एक दृश्य मतलब दिखाते हुए बोलने लगता है कि आप जो है एक दिन आप भी मेरे गार्डन पे आ जाओ, जो कि मेरा गार्डन है पैराडाइज, ठीक है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रन इन द आफ्टरनून दे फाउंड द जायंट लेइंग डेड अंडर द ट्री। और जैसे बच्चे हर दोपहर को खेलने जाते थे, जैसे वो स्कूल के बाद गार्डन पे दोपहर के समय खेलने गए तो जो जायंट था वो बिल्कुल मरा हुआ जमीन में लेटा हुआ उनको दिखाई देता है। और कवर्ड विद द व्हाइट ब्लॉसम्स, जो कि उसकी जो चारों ओर है वो क्या है, फूलते हुए जो खिलते हुए जो फूल जो है उसके चारों ओर कवर में दिखाई देता है। सो माय डियर चिल्ड्रंस, क्या देखा हमने फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट, जायंट वाज वेरी एंग्री, ही वाज नॉट allowed the children to play in his garden. And the second part, what we have seen that second part he allowed every children to play in his garden. थर्ड पार्ट में वो बिल्कुल जो एक सैड फील कर रहा था क्योंकि उसकी एक छोटा सा दोस्त लिटिल बॉय जिनके बारे में वो देख रहा था वो दोबारा वापस उनके साथ खेलने नहीं आता था, ठीक है। और इस तरह जो है इस लेसन हम कंप्लीट होता है। सो माय डियर चिल्ड्रंस, प्लीज रीड बाय योरसेल्फ and understand by yourself and watch this video again and again and wait for the PDF that I am going to upload in WhatsApp. Thank you and have a nice day.